ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਐਲਿਪਸ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਨਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਐਲਿਪਸ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਕਲਾਸ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਲ ਗੁੱਡ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ E ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। P ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। E ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਿਪਸ, ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ H ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਔਰ ਸਰਕਲ C ਸਰਕਲ, ਇਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? x ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਐਲਿਪਸ ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਵਰਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਲਿਪਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ अपॉन क्या किया था? बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ a greater than b ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ b ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ b ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲੈਟ ਸਿਲੈਕਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a ਸਕੁਅਰ ਚਲ ਗਿਆ, a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ b ਸਕੁਅਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚੇਂਜ। x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? y ਸਕੁਅਰ, ਔਰ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਚਲ ਗਿਆ? x ਸਕੁਅਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ। a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? देखो आ स्ट्रक्चर है हाइपरबोला का, देख लो तुसी। हाइपरबोला किस शेप का होंगे अपने को? इस शेप का। ठीक है जी। डायरेक्ट्रिस होंगे दो, एक तो आ डायरेक्ट्रिस, ये भी एलिप्स वांगू दो ही डायरेक्ट्रिस होंगे, दो ही फॉक्स होंगे, दो ही
की होनिया प्रैक्टिस होनिया दो फॉक्स ये सारा कुछ आ की होएगी दी मेजर एक्सिस होएगी मेजर एक्सिस मेजर नहीं सॉरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ट्रांसवर्स बस गल वही है बस नाम थोड़ा डिफरेंट है मेजर ही का काम ही मतलब मेजर होएगी जी ट्रांसवर्स है ये मेजर एक्सिस होएगी जी आ एक्सिस है ये होएगी कंजुगेट एक्सिस या जिमें आप माइनर बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस आ ट्रांसवर्सल आ कंजुगेट एक्सिस दो डायरेक्टिस हो गई आ डायरेक्टिस दो ही फोके ही होनी ठीक है जी एक तो सी फोके ये फोके आ सी क्लीयर हो गया सारा कुछ इदा ਇਹਦਾ डायग्राम ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ देख लिया होना वर्टिसेस भी दो होंगे एक तो वर्टिस रहा आ वाला और एक वर्टिसेस आ वाला रहा बाकी ऑल सेम है जी सारे फार्मूले वगैरह आप देख लेने देखो सेंटर की गल करांगे देखो ए ग्रेटर दैन 0 बी ग्रेटर दैन 0 यानी कि ए ग्रेटर दैन बी इस केस च भी और इस केस च भी ए ग्रेटर दैन बी ही है बस आप रिप्लेस किया उपर वाले ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਇਧਰ ਵੱਲ वर्टिकल ठीक है जी कंजूगेट हाइपरबोला सेंटर की 0 0 0 0 वर्टिसेस की होंगे प्लस माइनस ए 0 एवें लेफ्ट सीगे अगर एक्स के नीचे ਵੱਡਾ ਤਾਂ एक्स वाले वर्टिसेस और वाई के नीचे ਵੱਡਾ ਤਾਂ वाई वाले वर्टिसेस फिर ट्रांसवर्स वही इक्वेशन है सेम लेंथ भी वही 2a वो जो मेजर एक्सिस थी इतने बस ट्रांसवर्स रखता नाम कंजुगेट एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 उत्थे ही जी माइनर एक्सिस की लेंथ सी 2b ते इत्थे भी 2b यानी कि माइनर या कंजुगेट ठीक है जी फिर फोके भी वही प्लस माइनस ए एक्स के नीचे ਵੱਡਾ तो एक्स कोऑर्डिनेट ते फोके अगर वाई के नीचे ਵੱਡਾ तो वाई के कोऑर्डिनेट ते फोके प्रैक्टिस वही अगर एक्स के नीचे ਵੱਡਾ तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई फोके अगर वाई के नीचे ਵੱਡਾ तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई फोके बिल्कुल सेम ने सारे फॉर्मूले डिटो इक्वेशन ऑफ लेट सेक्टम सेम यही सी उत्थे भी लेंथ ऑफ लेट सेक्टम यही सी 2b स्क्वायर अपॉन ए और फोकल डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम तो ऑल फॉर्मूले बिल्कुल सेम ने सारे जी बस एक दो गल्लां दा डिपेंड होएगा कि अपने को माइनस आएगा बस आपां जो अप्लाई करना उदों जरूर ध्यान दे विच रखना है बस ठीक है जी होर कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैगा लिप्स ते हाइपरबोला च ऑल फॉर्मूले सेम ने सारा कुछ कढ़ना दा तुहानूं याद हो ही चुका होना क्या किहड़ी एक्सिस हुंदी है फोके की हुंदी है वर्टिसिस की हुंदी है डायरेक्ट्रिस की हुंदी है तो वही सारा कुछ अप्लाई होना इधर भी ठीक है जी असेंट्रिसिटी जिवें कि आपां गल कीती e ग्रेटर दैन 1 यानी कि 1 तो वड्डी हुंदी है तो असेंट्रिसिटी दा की फॉर्मूला बन जाएगा असेंट्रिसिटी हो जाएगी फिर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि छोटा ए स्क्वायर की होएगा छोटा और ए स्क्वायर की होएगा बड़ा और इसका रूट e इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर छोटा अपॉन बड़ा ठीक है जी या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी होएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आ फॉर्मूला होएगा ठीक है जी आ फॉर्मूला भी हो सकता है आ भी हो सकता है कंपेयर करवा दें मैं थोड़ा जिहा लिप्स नाल अगर मैं तुहानूं कंपेयर करावां तो उत्थे अपने को ई सीगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सिर्फ फर्क आ रहा सिंपल का क्योंकि ये 1 तो वड्डी है तो 1 दे विच प्लस होएगा ये 1 तो छोटी है तो 1 चों माइनस होएगा फिर आ देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इन्हां दोनों दे विच तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना नो कन्फ्यूजन ठीक है जी इन्हां दोनों दे विच कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कन्फ्यूज करता अपन 1 माइनस ए स्क्वायर या ई स्क्वायर माइनस 1 तो तुसीं बस इत्थों अप्लाई करके देख लो किवें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इधर आके प्लस का होएगा तो इसका मतलब ये आती है हाइपरबोला दी सेंट्रिसिटी क्योंकि 1 प्लस हो रहा है इधर की आएगा 1 माइनस का आएगा तो यदा मतलब 1 चों माइनस हो रहा है तो यह हाइपरबोला ये लिप्स की सेंट्रिसिटी आ तो तुसीं चेक कर लियो जरूर एक बार अप्लाई करने तो पहला कि 1 प्लस अगर सेंट्रिसिटी बन रही है हाइपरबोला की अगर 1 माइनस बन रही है तो लिप्स की क्लीयर ठीक है जी आ दो फॉर्मूले बिल्कुल सेम फॉर्मूले ने बस माइनस प्लस इतने प्लस आ जाएगा उधर माइनस क्लियर डन जी सेंट्रिसिटी ओके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
ਐਜ ਹੀ अपने गल कदे भी इलिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आई बट हाइपरबोला ਦੇ ਵਿੱਚ आई है कि रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। रैक्टेंगुलर हाइपरबोला की होएगा ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ हाइपरबोला जिमें लिखता आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये की है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये की है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो होएगी ऑलवेज √2 होएगी, ऑलवेज √2। किवें होएगी ऑलवेज √2, देखो नीचे तो 1 1 है, 1 ਇਹਦੇ नीचे भी 1, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ 1 प्लस 1 अपॉन 1 रूट, तो 1 प्लस 1 √2, ऑलवेज √2 एसेंट्रिसिटी होएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होएगा ਜਿਹਦੇ इंटरसेप्ट सेम होंगे बिल्कुल, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एग्जांपल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एसेंट्रिसिटी √2 होएगी ऑलवेज, ਤੁਸੀਂ फाइंड भी कर सकते हो, वैसे भी जा रख सकते हो कि एसेंट्रिसिटी √2 होएगी। हाउ टू चेक कॉनिक, फिर ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਨਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax ਸਕੁਅਰ प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोनिक की इक्वेशन है। इतों अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 बन जाएगा तो अपने को बन जाएगा हाइपरबोला। ठीक है जी, देखो नाल नाल डिवाइड कर देने हैं। पैराबोला च की सी, पैराबोला च सी एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एलिप्स ए दे विच की सी एच स्क्वायर माइनस ए बी लैस दैन 0। देखो ए भी 0, आ भी 0, ए भी लैस दैन 1, आ भी लैस दैन 0। ते हाइपरबोला दे विच की है, ए ग्रेटर दैन 1, तो आ भी एच स्क्वायर माइनस ए बी भी ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, इदा आप कॉनिक चेक करांगे। अगर ये ग्रेटर दैन 0 आ गया इसके मीन से भी सारे हाइपरबोला अपना बन जाएगा। फिर जी गल हो गया थोड़ा। ओके, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का सेंटर आप फाइंड करना है, बिल्कुल तुसी कीता हुआ डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, की आएगा 18x। तुसी विदाउट पेन कर सकते हो 18x माइनस 36, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो माइनस 30y प्लस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस 32y इज इक्वल टू माइनस 96, माइनस ना माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। 2 3 ने जो सेंटर अपने आ चुके हैं, 2 3 ऑप्शन नंबर ए। बस आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਚ ਪਏਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ यानी कि एक्स के कोफिशिएंट की और वाई की, यदि सिर्फ लोड़ पैंती है आपां नूं सेंटर फाइंड करने च, होर कोई भी लोड़ नहीं पैंती आपां नूं शिफ्टेड दे विच। लोड़ आपां नूं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर यही पाई। क्लीयर हो गया, सेंटर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द फोकी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की फोकी फाइंड करनी है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। करो जी, देखते हैं कि आंसर आता सब तो पहला ये आ गया। पहला सेट कर दो हाइपरबोला 144 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, आई हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हम एसेंट्रिसिटी फाइंड कर दो, एसेंट्रिसिटी की 1 प्लस, बस इतने ध्यान रखना प्लस आएगा, हम इतने पहला वाला फॉर्मूला लगा दो भी 1 माइनस वाला, 9 अपॉन 16 छोटा अपॉन बड़ा, 25 अपॉन 16 5 बटे 4। बस इतने भी ध्यान रखना कि इतने बड़ा ही बनना चाहिए, 5 बटे 4 सही है, 4 बटे 5 रॉन्ग होएगा, 5 बटे 4। ठीक है जी, ताकि होंगे अपने को फोके, देखो कि नीचे बड़ा एक्स के नीचे बड़ा, तो फोके ही होएगा प्लस माइनस ए ई 0 आई होएगा फोके, तब पुट कर दो फोके प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 5.4 कोमा 0, 4 नाल 4 कैंसिल, प्लस माइनस 5 0। ठीक है, विदाउट ऑप्शन अगर आप करना हो आ क्वेश्चन देख के आप आ ऑप्शन और आ ऑप्शन का दोनों कट सकते हैं, चाहे गल इन्ना दोनों
ऑप्शनों के विचों ਆਪਾਂ अगर गैस भी मारना हो तो दो ही रह जाएंगे क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ देख ਲਾਂਗੇ कि एक्स ਦੇ नीचे ਵੱਡਾ ਤਾਂ ओके वाई ਤੇ ਤਾਂ बन ही नहीं सकती आ दोनों ऑप्शन ਤਾਂ बिल्कुल नहीं आ सकते ठीक है जी रिलेशन बिटवीन एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला एक अपने को रिलेशन होंगे बहुत ही बढ़िया रिलेशन है ये एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ਤੇ कंजुगेट हाइपरबोला ਦੀ एसेंट्रिसिटी ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪੋਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪੋਨ e ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ e ਡੈਸ਼ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ हाइपरबोला ਦੀ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 1 upon e square plus 1 upon e dash का square is equal to 1 क्लियर रह जाएगा याद ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ e and e dash eccentricity of hyperbola and its conjugate then 1 upon e square plus 1 upon e dash square is equal to 1 ਹੁੰਦਾ है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 3 the eccentricity of conjugate hyperbola of the कंजुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है इतों आए तो ध्यान मारो कंजुगेट हाइपरबोला सिर्फ हाइपरबोला की नहीं कंजुगेट हाइपरबोला तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ x ਸਕੁਅਰ अपॉन 1 माइनस y ਸਕੁਅਰ अपॉन 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 ई फाइंड कर लो सिंपल एसेंट्रिसिटी की आएगी 1 प्लस छोटा कौन है 1/3 डिवाइड 1 करांगे तो उसका कोई मुद्दा नहीं हैगा 1 तो 1 नहीं हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4/3 का रूट यानी कि 2 अपॉन रूट 3 आ गई एसेंट्रिसिटी हमने आप रिलेशन पढ़िया एक 1 अपॉन ई स्क्वायर 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर लो जी फाइंड 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर की को आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर कर लो फाइंड 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन ई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 4 एकम 4 माइनस 1/4 तो 1 अपॉन ई स्क्वायर तो आ गया बट अपन तो चाहिए ओनली ई डैश का स्क्वायर वो पलट जाएगा तो हो जाएगा 4 बट अपन चाहिए ओनली ई डैश तो वो हो जाएगी 2 एसेंट्रिसिटी आ गई 2 कंजुगेट हाइपरबोला ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 upon root 3 ਇਹ ਇੱਕ ਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਇਹ एसेंट्रिसिटी करनी हाइपरबोला ਦੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ठीक है जी बी ऑप्शन रॉन्ग है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट अंडरस्टैंड आप वाला फॉर्मूला लगावांगे इसमें इधर रखा इन लैफ्ट हैंड साइड से लैके ई स्केल की वैल्यू पुट की आ गया ये 1/4 आ गया बट ये 1 अपॉन ई डैश का स्केल सीगा 1/4 दोनों ਨੂੰ उल्टा कर देंगे तो ई डैश इज इक्वल टू ई डैश का स्केल इज इक्वल टू 4 ई डैश इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्लियर नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪਰ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲਿਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੌਰੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ जो होएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अगर ये आ जाता लैस दैन 0 आ गया यानी कि पॉजिटिव आ गया लैस दैन 0 आ गया नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना लैस दैन 0 तो नेगेटिव हो गया ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ और आउटसाइड होएगा तो टेंजेंट कितने 2 टेंजेंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर ये 0 आ गया तो फिर तो ऑन ये ऑन ही होएगा ऑन होएगा तो ओनली 1 टेंजेंट फिर अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ਤਾਂ ਹੁਣ ग्रेटर आ गया पॉइंट की होना चाहिए सी आउटसाइड होना चाहिए सी बट इत्थे आउटसाइड ना हो के एक की होएगा इनसाइड होएगा
इनसाइड होएगा तो टेंजेंट 0। बस उल्टा होंगी है जो भी कंडीशन एलिप्स नालों ते पैराबोला ते सर्कल नालों सारे नालों उल्ट होंगी है। ठीक है जी। आउटसाइड पॉइंट आ होएगा, इनसाइड आ होएगा, ऑन आ होएगा। ओके जी। करो फिर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। नंबर ऑफ टेंजेंट दसने ने एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इन्हों लिख लांगे -1 कर दो पुट 4 1 4 पुट किया 16 अपॉन 4 माइनस 1 पुट किया 1 अपॉन 3 -1 ये आ गया 4 -3 -4 अपॉन 3। 4 चो 4 तो छोटा काट देता है, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट की हो गया इनसाइड हो गया, इनसाइड पॉइंट हो गया, इनसाइड पॉइंट हो गया था नो टेंजेंट, जीरो टेंजेंट। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन नो टेंजेंट। सभी की कंडीशन उल्टी होगी। ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सेम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं एक्स स्क्वायर में रिप्लेस कर दूंगा एक्स एक्स वन बी स्क्वायर माइनस वाई बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। नॉर्मल भी फाइंड करनी है, उमें भी जी आएगी वो तो स्लोप फाइंड करके नॉर्मल भी फाइंड। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप फॉर्म बिल्कुल सेम है जी। स्लोप फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y mx + c और एक अपने को की है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है। बस ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ a स्क्वायर m स्क्वायर ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਧਰ ਬੇਸ ਕਿਆ ਸੀ ਅਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अवेयर बस अगर इतने माइनस है तो सब कुछ माइनस ही आता जाएगा भैया। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀ प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ਇੰਨਾ ਕੁ डिफरेंस है, इतने प्लस इतने माइनस बाकी से। कंडीशन ऑफ लाइन टच हाइपरबोला बिल्कुल सेम है जी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। टच किनू कर दिया हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस हम माइनस आ जाएगा उत्थे प्लस होंगे बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। उत्थे बिच प्लस होता इत्थे भी प्लस होंदा सी, इधर माइनस है तो इत्थे भी माइनस आ। क्लियर हो गया सारा। ओके जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल दस सकता जी कोई चीज होगी। देखो आपने को हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली। और अलेफ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਉੱਥੇ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੈਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਪੈਰਾਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ पैरामेट्रिक फॉर्म किया जाना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू ए सिकम थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। पैरामेट्रिक एलिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा
y इज इक्वल टू b sin थीटा आ लिख सकते। अगर फिल करांगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा वो 1 होता है। Question number 5. The value of m for which y is equal to mx plus c is tangent to the hyperbola. m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ c ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ ਆਫ a ਸਕੁਅਰ m ਸਕੁਅਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ c ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 6 प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्केयर कितना बन जाएगा इतना 100 100 एम स्केयर आप फाइंड करना है एम फाइंड करना है यानी कि द वैल्यू ऑफ एम फाइंड करनी है माइनस बी स्केयर कितना हो गया 49 तो दोनों साइड स्केयर कर देंगे तो हो जाएगा 36 पहले अगर स्केयर करांगे प्लस माइनस का ओनली प्लस ले लेगा तो ये हो जाएगा 100 एम स्केयर माइनस 49 तो इधर ले जाएंगे 100 एम स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 49 एम स्केयर ये हो गया अपने को 85 अपॉन 100 एम की वैल्यू कितनी आ गई रूट 85 अपॉन 100 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ नीचे का 10 बन गया 85 में भी लिख सकते हैं आप। अच्छा रूट च ही रख रखा इन्होंने सारा तो ठीक है जी अंदर ही कट कर दो 17/20 5 से कट करता 17/20 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इतना आप सी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते सी एम की भी फाइंड कर सकते बस आ फार्मूला आप ध्यान रखो लेफ्ट के प्लस होएगा हाइपरबोला च माइनस होगा। Question number 6. The equation of normal to the hyperbola 8 the point 8 3 root 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ x x1 upon 16 minus y y1 upon 9 is equal to 1 तो हम वैल्यू पुट कर दो 8x upon 16 minus y1 की वैल्यू पुट कर दो 3 root y 3 root 3y upon 9 is equal to 1 कर दो 2 आ गया कर दो 3 आ गया x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन रूट थ्री ऊपर है तो नीचे रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 टाइप तो स्लोप फाइंड कर दो स्लोप की आ जाएगी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस ना माइनस कैंसिल था कितना आ गया रूट 3 अपॉन 2 आ गया जी स्लोप ऑफ टेंजेंट बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल वो अपने को आ जाएगा माइनस एंड उल्टा माइनस ऑफ 2 रूट्स अप्लाई कर दो हम y माइनस y1 कितना 3 रूट 3 स्लोप -2 अपॉन रूट 3 x माइनस 8 कर लो सॉल्व कितना आएगा रूट 3y माइनस रूट ना कर देंगे 3 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 16 इन्हों इधर ले आवेंगे एक हो जाएगा सारा 2x प्लस रूट 3y सानू इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 25 ऑप्शन नंबर डी बस ऑप्शन था वैसे इतों ही पता चल गया से आपको क्योंकि रूट 3 है जो y नाल ही जाएगा तो होर किसी भी ऑप्शन दे विच रूट 3 y नाल है नहीं सीगा तो ऑप्शन आप इत्थे क्लियर करता सी क्लियर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटैक्ट ऑफ टेंजेंट कोड ऑफ कंटैक्ट ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂजेंट ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ t equal to 0 दूसरे नंबर पे इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटैक्ट वो भी की होएगी t equal to 0 फिर तीजे नंबर पे आप लिखी सी इक्वेशन ऑफ
पोलर वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਡ ਆਫ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ t is equal to s1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ pair of tangent equation of pair of tangent ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ t square ਸੌਰੀ t square s1 t square is equal to s1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 16 x की जगह x की जगह x1 minus 9 y की जगह y1 is equal to 144 x1 की वैल्यू कितनी है 2 तो ये कितना आ गया 32x माइनस ये हो जाएगा प्लस 9y is equal to 144 तो देख लो जी ऑप्शन नंबर 32x plus 9y 144 32x plus 9y आनी है जी 32x plus 9y प्लस 144 32x plus 9 plus 1 ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ हाइपरबोला whose midpoint आओ तीसरी नंबर वाली इक्वेशन आ गई चौथे वाली सॉरी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट t is equal to s1 ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ t ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ t ਕੀ ਆਏਗੀ 25x x1 minus 16y y1 minus 400 equal to s1 ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ x1 25 x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 16 y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 400 400 ਨਾਲ 400 कैंसिल x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨੀ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 125 x minus y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 48y is equal to 25 x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी कि 25 माइनस 16 y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी कि 9 125x माइनस 48y 25 ने 25 कितना 625 625 जो 144 गए 625 माइनस 16 ना 144 कितना आएगा 184 481 ऑप्शन नंबर बी राइट जिन्होंने भी बी आंसर देता है बिल्कुल राइट है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट बाय एम ए फाइव equation of question number 9 if 5x square plus lambda y square is equal to 20 represent a rectangular hyperbola then lambda equals ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਇਨਾਮ ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਇਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਨਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਨਿਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 5x ਸਕੁਅਰ प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 तो सब तो पहला देखो इतने प्लस है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ
हाइपरबोला ही नहीं बन रहा, हाइपरबोला नहीं बन रहा तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਬਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5x² ਮਾਈਨਸ 5y² अपॉन 20 पुट करता तो हम 20 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो नीचे 4 आना है, तो बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि नीचे की आएगा 4 आएगा तो इक्वल इंटरसेप्ट हो जाएंगे, अगर इक्वल इंटरसेप्ट हो गए तो केड़ा हाइपरबोला बन जाता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। यस जी। क्वेश्चन नंबर 10, the one which does not represent a hyperbola is, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। The one which does not represent a hyperbola, very very important question है, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, विदाउट पेन क्वेश्चन है, नॉलेज है तो बहुत जल्दी हो जाए। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 मैं तो करवाया सी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि है अपने को हाइपरबोला ਹੁੰਦਾ है जी, ये हाइपरबोला है, ये ऑप्शन था। बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी हैगा हाइपरबोला तो है ना, चाहे रेक्टेंगुलर है चाहे कोई, भी हाइपरबोला बनेगा अगर मल्टीप्लाई करांगे एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 ना 3 कैंसिल, एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर तुम ये लगाओगे एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर दैन 0 बनेगा, तो ये भी हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला केड़ा नहीं हैगा आ वाला, क्योंकि कदे भी इंटरसेप्ट की नहीं होंदा, 0 नहीं होंदा, कदे आप लिखांगे एक्स स्क्वायर अपॉन 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू 1, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ which does not represent a hyperbola, option right, clear, the option right। साफ करना फिर बात ओके। क्वेश्चन नंबर 11, the eccentricity of the hyperbola, hyperbola की eccentricity ਆਪਾਂ फाइंड करनी है, x square minus y square is equal to 6। देखते हैं जी किहदा आंसर सब तो पहला आंदा हाइपरबोला की eccentricity। देखो कंजुगेट हाइपरबोला तो नहीं है, कंजुगेट तो नहीं है ना, क्योंकि इतने 2 है, अगर इतने 2 ना होंदा फिर कंजुगेट होंदा, फिर तो आप सीधा ऑप्शन लगा देना सी ए, बट कंजुगेट नहीं हैगा तो हम की करो 6 ना डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। हाँ सेंट्रिसिटी की आएगी ई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस छोटा 3 बटा 6, तो 6 प्लस 3 9 बटा 6, हाँ ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया रूट 6। ठीक है जी, हाँ आंसर नंबर का एक बार हम चेक करिए, रूट 3 नो करता है रूट 3 अपॉन रूट 3, तो होगा 3 अपॉन रूट 3, 9 बटा 6 3 बटा रूट 6। ऑप्शन बन रहा है
2 into 3 √3/√, इसके नीचे हो जाए √2, ये राइट आंसर है। फिर तो अपन लिख सकते हैं 3/√2 √3, तो ऊपर चल जाएगा √3/। ठीक है जी, डी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ, √2 ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। डी ऑप्शन बन रहा है, अगर फिर भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ बन रहा होगा तो प्लीज दस दो। ठीक है, यही ऑप्शन राइट है, √2 नीचे लगा लो। वैसे अपना राइट आंसर ए वाला है या ए वाला है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 12, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो करो जी, कौन करेगा हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स फाइंड। प्रैक्टिस ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ e ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ a ਚਾਹੀਦਾ। x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to 1। e फाइंड कर लूँ, e आ जाएगी 1 plus 4 upon 9 यानी कि √13 upon 3। आ e आ गया की होंगी डायरेक्ट्रिक्स के नीचे ਵੱਡਾ तो x is equal to plus minus a upon e। प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/√13/3, तो कितनी आ गई प्लस माइनस 9/√13। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, वाई इक्वल टू है, एक्स इज इक्वल टू है, वाई इक्वल टू है, ऑप्शन नंबर ए। इतों दो ऑप्शन तो वैसे ही कट्टियां जानियां, वाई इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि अगर एक्स के नीचे ਵੱਡਾ है तो एक्स के इक्वल ही आएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो आ दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द लेट्स रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेट्स रेक्टम फाइंड करनी है, पहला हाइपरबोला में सेट कर लो, x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो लेट्स रेक्टम की होंगी है 2b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर यानी कि छोटा छोटा कितना 9, a यानी कि 16 नहीं आएगी 4 आएगी, 4 9 दूनी 18 अपॉन 4 2 से कर दो 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। यार 2b स्क्वायर अपॉन 9 दूनी 18 बचा 9 का 2। ओके, पिछले क्वेश्चन च भी यही मिस्टेक रही है, स्केल अपॉन बी। पिछला पिछला बी स्केल 6 बटा में 3 is equal to 1 plus 6 upon 3 and 3। ओके, तो देखो जी, क्वेश्चन आप दोबारा करते हैं। 11 नंबर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x स्क्वायर अपॉन 3
माइनस वाई स्केयर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर अपॉन ए ਹੁੰਦਾ वाई स्केयर अपॉन बी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ b ਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਏ ਸੀ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 b ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਬਟ a ਤੇ b ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇੱਥੇ a ਤੇ b ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ ਚ। एक्स स्केयर अपॉन ए वाई स्केयर अपॉन बी, बस सिंपल आई होएगा ए ग्रेटर दैन 0 बी ग्रेटर दैन 0 ए ग्रेटर दैन 0 बी ग्रेटर दैन 0। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b। ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ a ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, y ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ b ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो हम आ की बन गया x के नीचे a आ गया y के नीचे b, x के नीचे a y के नीचे b, तब 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 आ b स्क्वायर हो गया और आ हो गया a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना 3, तो यह हो गया 9/3 ਉਹਦਾ रूट, तो यह हो गया √3। आंसर डी। ठीक है जी, आ क्वेश्चन बिल्कुल राइट सीगा, ਇਹਦਾ सही सीगा अपना। ठीक है जी, फिर आ क्वेश्चन 16x स्क्वायर, हम देखो 16 इन्हों अगर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16। ए स्क्वायर अपॉन 9 बी स्क्वायर अपॉन 16, बड़ा छोटा आप कुछ नहीं लेना, लेफ्ट साइड तो फाइंड करनी है 2 बी स्क्वायर यानी कि 16 ए कितनी आ जाएगी 3, तो ये आ गया 32/3 32/3 नंबर बी। क्लियर। एक्स के नीचे जो होएगा वो ए मन्निया जाएगा, वाई के नीचे जो होएगा बी मन्निया जाएगा। अगर अपने को हाइपरबोला इस तरह का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर जो वाई के नीचे इधर होएगा वो ए मन्निया जाएगा, एक्स के नीचे होएगा बी मन्निया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बड़ा छोटा आप नहीं देखना, बस एक्स के नीचे जो होएगा वो ए मन्निया जाएगा तो वाई के जो नीचे होएगा वो बी मन्निया जाएगा। द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की फोकस फाइंड करनी है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ताकि आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 1। हम ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब ओके जी सेंट्रिसिटी फाइंड कर दो, E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5/3 ए स्क्वायर 5/2, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल, 1 प्लस 2/3 ये हो जाएगा √5/√3। ठीक है जी, तो अपने को की आएगी फिर सेंट्रिसिटी वाई के नीचे वड्डा जा ए बन गया एक्स के नीचे वड्डा है, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस ए ई 0 प्लस माइनस ए कितना √5/√2 √5/√3 ए ई आ गया इज कोमा 0, √5 हो गया, ये हो गया √6 प्लस माइनस कोमा 0। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे ही कट्टा जाना सी, हाँ कोई नहीं कट्टा जाना है, हाँ भी कट्टा गया। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस की होगी 2a होगी, 2a फाइंड कर लेंगे 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 32/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32/4। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 32/3, अपन चाहिए ए आ जाएगी √32/3 बट अपन की चाहिए 2a, तो 2 इंटू √32/√3 यही बनेगा। तो देख लो जी केड़ा ऑप्शन बन गया, आता कट्टिया गया
तो अंदर जाएगा तो 32 चौका 68। ओके, अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ 4 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ √2, नीचे √3, तो ये बन गया 8 √2 अपॉन √3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, the equation of the hyperbola whose foci are the foci of the ellipse and eccentricity is 2। देखो जी एलिप्स की फोकी है वही सेम हाइपरबोला की फोकी है तो एसेंट्रिसिटी 2 दे रखी है। तो पहला फोकी फाइंड कर लो एलिप्स तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो फोकी लिए e फाइंड करना पैना है 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा 9 अपॉन 25 16.25 यानी कि 4 अपॉन 5 ये आ गया। तो फोकी आ जाएगी प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस 4 जीरो। अब फोकी आ गई यही फोकी का दी है होना हाइपरबोला। ठीक है जी, हाइपरबोला की सेम फोकी यानी कि ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू कितनी है 2। तो इतों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, इतने पुट करांगे तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, 4 माइनस 1 12, बी स्क्वायर की वैल्यू 12। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्म 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 ऑप्शन राइट। आता एलिप्स मानते हैं, अभी एलिप्स मानते हैं ते का अते वैसे कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी राइट। If 0 plus minus 4 and 0 plus minus 2 be the foci and the vertices of hyperbola, then its equation। हाइपरबोला की जी फोकी है यानी कि ए ई आ गई 4 और ए आ गया 2। हम देखो वाई एक्सिस की फोकी है वाई एक्सिस की वर्टिस है, इसका मतलब वाई के नीचे बड़ा मतलब हाँ मतलब वाई स्क्वायर बनेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि आ वाली फॉर्म बनेगी ना आ वाली। ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर वाई के नीचे आएगा ए, हम आप इतों फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 2 यानी कि वाई के नीचे ए स्क्वायर होता है तो आ ऑप्शन राइट आ जाएगी, आ कैंसिल हो जाए सीधा सीधा पता लग रहा। देखो ए की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 4 तो इतों आप फाइंड भी कर सकते हैं ए की वैल्यू 2 आ गई तो बी स्क्वायर की हो जाएगा अपने को ए ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 16 माइनस 4 12 बी स्क्वायर 4 आ गया, हाँ 12 आ गया तो ए स्क्वायर 4 आ गया वाई स्क्वायर पॉइंट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉइंट 12। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। The equation of hyperbola whose foci are 5 0 and minus 5 0 and the length of conjugate axis is 2 8। तो फोके दे रखी है यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 5 और कंजुगेट एक्सिस यानी कि 2b वो है 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू 4 आ गई ए की वैल्यू 5 आ गई तो ए स्क्वायर फाइंड कर देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर इधर आके 16 9 ए स्क्वायर की वैल्यू 9 तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16। कर दो जी, पक्का नहीं बनते कोई 12 डिवाइड करांगे तो और ही चल जाएगा, इन्होंने दोनों के विच ही होना एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आ गया 16 बट अपना ए स्क्वायर 9 है तो आ भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट। द हाइपरबोला इज द कोनिक विद एसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला की जी एसेंट्रिसिटी होंगी है वो कितनी होती है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। हाइपरबोला की जी एसेंट्रिसिटी होंगी है अपने को वो होंगी है ई ग्रेटर दैन 1, ऑप्शन नंबर ए ई ग्रेटर दैन 1। If E1 E2 be the respectively eccentricity of ellipse
एंड हाइपरबोला 10। हाइपरबोला की एलिप्स की सेंट्रिसिटी फाइंड कर लो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की आ जाएगी 1 माइनस 4 अपॉन 9, ये आ गई 1 अपॉन 4 माइनस 9 का आ जाएगी √5 अपॉन 3 और ए भी आ जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस का 4 आ जाएगी √13 अपॉन 4। हम देखो दोनों का स्केयर, ਇਹਦਾ स्केयर कर देंगे ई स्केयर कर देंगे तो 5/9, ਇਹਦਾ स्केयर कर देंगे तो 13 अपॉन 16 ई डैश का स्केयर या E1 E2 बोलते ना E1 हम दोनों का सम करो कि ग्रेटर दैन 3 आ रहा है या इक्वल टू 2 आ रहा है या ग्रेटर दैन 4 आ रहा है या लैस दैन 4 आ रहा है, तुम चेक करना हो दोनों का स्केयर, इन्होंने दोनों का स्केयर ऐड कर दो और चेक कर लो की बन रहा है। ठीक है जी, तो तुम आंसर है जो वो चेक कर लो, कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी 3/2 एंड फोकी प्लस माइनस 20। एसेंट्रिसिटी कितनी है 3.2, फोकी यानी कि ए की कितना है 2, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए 3/2 इज इक्वल टू 2, ए कितना आ गया 4/3, ए की वैल्यू आ गई 4/3। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ए की वैल्यू कभी 2 आ रही है, ऑप्शन तक कैंसिल। ਇੱਥੇ देखो अगर 4/9 ਨਾਲ डिवाइड करांगे ये आएगा हाँ ਇੱਥੇ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ये बनेगा 36/9 माइनस वाई स्क्वायर 45/36 स्क्वायर बटा में तो ऐसे फाइंड कर देंगे। ए आ गया ई आ गया, हम बी स्क्वायर की आ जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए स्क्वायर यानी कि 16/9 आ गया बी 20/9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 4.3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 20/9 इज इक्वल टू 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, नाइन एलसीएम आ गया ना, आई ऑप्शन बन गया ए ऑप्शन। ये मतलब इधर लेके आवांगे ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 6 4 इधर 16 और 20 ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ 16 ਬਟਾ 9 16 बटा 9 ਤੇ डिवाइड 4 16 बटा 20। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन x square upon 12 minus k plus y square upon 8 minus k is equal to 1 represent हाइपरबोला k less than 8 k ਨੂੰ 7 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 7 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 7 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲਿਪਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ कैंसिल एंड एलिप्स के भी ग्रेटर देन 9 तो 9 पुट करके देख लो k इज इक्वल टू 9, 9 पुट किया तो प्लस बन गया, 9 पुट किया a माइनस बन गया, ये हाइपरबोला है जो बन गया k ग्रेटर देन 8 पुट करते। ठीक है जी, बट 8 तो ज़्यादा भी अगर आप पुट करांगे, अगर आप पुट करता 13 तो फिर आ भी माइनस हो जाएगा, 13 पुट करता तो आ भी माइनस हो जाएगा, आ भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ए ऑप्शन भी कैंसिल। एक बार लग गया अगर 8 तो 12 तो ਇਹਦਾ मतलब आंसर आएगा 8 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 और 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ऑप्शन नंबर सी।
ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ रिप्रेजेंट करेगा कदों। हाँ सब तो पहला तो सेंटर चेक कर लो 32x माइनस 32 x की वैल्यू 1 तो सेंटर तो 1 आ रहा है पहले इन्होंने माइनस 1 दिता है कैंसिल लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 ए की वैल्यू कितनी आ गई √3 और 2√3 ਇਹਦਾ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2√3 ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 8 ਆ ਗਈ ट्रांसवर्स एक्सिस ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ ਐਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 1 + 16/3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ √19/3 डी ऑप्शन राइट एसेंट्रिसिटी बन रही है √19/3 द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला वर्टिसेस फाइंड करने ने तो सब तो पहला सेंटर फाइंड कर लो 18x - 30x की वैल्यू 2 माइनस 32y x की वैल्यू 3 ठीक है जी सेंटर फाइंड कर ले हम फाइंड करने वर्टिसेस के होंगे ने +- a 0 अगर x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 y वाला x ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ x ਵਾਲਾ y ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਤਾਂ +- 4 0 ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ +- 4 +2 0 +3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6,3 और -2,3 6,3 और -2,3 6,3 - 2,3 राइट बी ऑप्शन राइट फर्स्ट -6 नहीं बन रहा +6 हाँ बी ऑप्शन राइट ओके फाइंड करनी है सेम पहला सेंटर फाइंड कर लो 18x + 18 तब -1 आ गया -32y + 32 y की वैल्यू आ गई 1 ये तो आ गया सेंटर ओके की होंगी है ए ± ए 0 x square upon 16 y square upon 9 is equal to 1 ये फाइंड कर लो ये आएगी 1 + 9 upon 16 यानी कि बी स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होंगी है तो ये आ गया 25/5/4 वड्डी आएगी 5/4 हाँ ए प्लस माइनस ए कितनी 4 × 5.4, 0 +- 5 आ गई अपने को ओके बट ए सही नहीं हैगी हजे आप ये ऐड कर देने सेंटर +- 5 -1 0 +1 ये हो जाएगी 4,1 -6,1 वैसे ही ऑप्शन तो पता चल गया सीधे 1 1 सेम ने ए च भी कोई सेम नहीं ए च भी कोई सेम नहीं तो आही ऑप्शन बी बन गई सी राइट बट आप यही फाइंड भी कर ठीक है ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ a ਸਕੁਅਰ l ਸਕੁਅਰ -b ਸਕੁਅਰ m ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਿਪਸ ਲਈ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਐਲਿਪਸ ਲਈ ਹੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ a ਸਕੁਅਰ m ਸਕੁਅਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ क्वेश्चन नंबर 7 the equation of the tangent इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो 4y स्क्वायर लिख दो y1 x स्क्वायर लिख लो x1 -1 1 पुट कर दो x की जगह y की जगह y1 की जगह 0 तो 0 होगा सारा x1 की जगह 1 x -1 x -1 is equal to 0 x is equal to 1 ऑप्शन नंबर A the line is tangent to the hyperbola the point of contact फाइंड करने of tangent यदि tangent equation फाइंड कर लो x1 - 4y/1 is equal to 5 ठीक है जी ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾਲ x1 - 4y/1 is equal to 5 ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x - 4y is equal to 5 ਤਾਂ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉੱਪਰ x1 नीचे 3
वाई का कोफिशिएंट ऊपर कितना -4y, नीचे -4y1, नीचे वाई का कोफिशिएंट -4, इधर भी 5 और इधर भी 5 कैंसिल। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और -4 और -4 कैंसिल, y1 की वैल्यू आ गई 1, यानी कि 3,1 पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ ए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट 3। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लांगे। 2x के दिया गया x1 माइनस 3y1 इक्वल टू 6, x1 की जगह 3 और 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, 2 3 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू की हो जाएगा x माइनस 1, स्लोप कितनी आ गई m की वैल्यू कितनी है 1, b y इज इक्वल टू mx प्लस c, या फिर m भी फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y -1 माइनस कैंसिल 1, इधर भी 1 मान है, इधर भी। ऑप्शन नंबर बी, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द हाइपरबोला विच इज बाइसेक्ट, मिड पॉइंट वाली कढनी है तो इधर क्या टी टी आ जाएगी अपने को x1 माइनस y1 -9, इधर आ x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर -9 x1 की वैल्यू 5x माइनस और ये हो जाएगा प्लस 3y, x1 का स्क्वायर यानी कि 25, ये हो जाएगा 9, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 34। बस अच्छा माइनस थी ना, इधर माइनस आएगा 25 माइनस 16, 5x प्लस 3y इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन है। एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व, ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੀ ਕਰਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √2, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ √2। The reciprocal of the eccentricity of hyperbola, rectangular hyperbola ਦੀ eccentricity ਹੁੰਦੀ ਹੈ √2, rectangular hyperbola RH eccentricity √2, ਉਹਦਾ reciprocal ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/√2, 1/√2 ਉਹਦਾ reciprocal। ऑप्शन नंबर डी। कर्व XY is equal to C square is said to be, ਇਹ ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। XY is equal to C square is equal type of rectangular hyperbola, ਤਾਂ ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का rectangular hyperbola। ओके, क्लास इज ओवर। तो अपना हाइपरबोला कंप्लीट हो चुका है, 1 डे ही रखा ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਲ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ MCQ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।